So we will start today about the apoptosis. Okay, audio video is clear. So you will surprised to know that this is the part of unit 4 also. Okay, and also this is the part of developmental biology, and there you have to study about the programmed cell death. So this is going to cover in this single lecture. Okay, I'm not going to discuss today aging and senescence, but senescence, of course, this is related to the plant, so I will discuss it next day. Programmed cell death and apoptosis we will discuss today. What are the causes, what are the factors? So if you will see, can you define what is apoptosis in simple term? Programmed cell death. This is a kind of program cell. Program cell, why we are saying program cell death? Because every step is fixed. Okay, that's why it takes time. The programming, it's a kind of programming, internal programming. Right. As a result of something, this PCD or program cell death will occur, and in general term, this is also called as apoptosis. Okay, so let us see some of its features. What are the causes? For example, there is a healthy cells, and anyhow there is injury. What kind of injury? There may be genetic injury, in which DNA, at the DNA level, some changes are there. This is called as the genetic engineering. The genetic error will occur, and this is going to have a serious consequences. So as a result, what you can see, cell attempt to repair the errors. First thing what they are going to do, they are going to repair first, right? And all errors, if repaired, then it's okay. If not repaired, any kind of error remains or additional injury is going to happen, then this PCD is activated. Now you can see the cell program itself. What do you mean by programmed cell death? Means cell programming itself and cell taking the decision to die. This is called as the apoptosis. Now you can see the larger picture of this apoptotic cells. Now from the cells, individual apoptotic body are arising, right? And further, because of leakage, because of fragmentation, because of this is called the bleeping. What is this called as a bleeping? So this is the hallmark of apoptosis, right? So now if you see, earlier we have discussed that actually the P53 is going to check. What they are going to check? Bolo. They are going to check integrity of DNA, right? What they are going to check? Integrity of DNA. And if DNA is damaged, or any type of abnormalities are there, what the cell taking decision? The cell cycle immediately going to be in the arrest, because they need time for the repair. So DNA repair is done, and then cell cycle restart again. Otherwise, if it cannot be repaired, then immediately internal program is activated, and as a result cell is going to die. And as soon as the cell is going to die, also there is a phagocytosis by the macrophages for the elimination of damaged cell, right? So this is going to maintain both, what both? Cellular as well as genetic stability. So this question can be asked, as a result of apoptosis, what kind of stability you can achieve? What kind of stability can be achieved in the cells? What kind of stability can be achieved by the
cells, cellular only, genetic stability, and both are null. So if you are studying seriously, then you are getting your answer properly. Alright, so this is clear. Now there are two pathways. One is the intrinsic pathway which is activated, and other one is extrinsic pathway. So these are the molecular detail of intrinsic pathway. But before that, we should understand properly it's a feature, it's a hallmark, it's a characteristic. Then we will come to know the detailed molecular mechanism, how this internal activation is there, how external activation is there, and then how signaling, programming is going to done by the cells for the apoptosis, activation of apoptosis. So apoptosis is a cell mechanism to eliminate those cells which cannot be repaired or which are going to be in the dangerous state, right? So this is the loss of ability to undergo apoptosis. That's our main cause of cancer formation. What you can say, loss of ability to undergo apoptosis leads to cancer. Means if you understand apoptosis, you can control the cancer, right? So what are the features of the apoptosis? Overall shrinkage in volume, right? Overall shrinkage in volume of the cell and its nucleus, loss of adhesion to neighboring cells, formation of ब्लेब्स. वो जो ब्लेब्स आपको दिख रहा था यहाँ पे, है ना, ब्लेब्स मीन्स some part of the original cell is going to, है ना, going to be detached. And then lastly DNA fragment means suddenly ऐसे नहीं बस्ट हो जाता है, बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, सीरियल से हो रहा है. फर्स्ट देयर विल बी श्रिंकेज इन द वॉल्यूम. पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप विल बी, बोलो, shrinkage of volume in volume. Second, loss of adhesion to neighboring. And third will be the formation of blebs. And fourth step is the DNA fragmentation. तो ये sequence पूछ सकता है. They can ask you the sequence. Which one is the first? First step is the shrinkage in volume. Second, loss of function. The order is fixed. Third is formation of blebs. Fourth is the activation of DNA fragmentation. Right? So DNA fragmentation is there. And then finally step phagocytosis means rapid engulfment of the dying cell by phagocytosis. क्या? Phagocytosis. Now we should understand what are the different type of cell death. Cell death, if there is a sudden injury, then cell death will be occur because of necrotic mechanism, which is totally different from the physiological mechanism. Physiological means natural. This is programmed, and this is sudden, because suddenly cell burst, loses, anything happens. So that's why they can undergo necrotic degradation. Necrotic degradation, these are not programs. Okay, these are not programmed. Okay, beta, this is clear. So yes, this is program. Now, if you catch up this concept, what I can say.
natural, this is programmed. Now in the program there are also three mechanisms. One is not very clear, third one, but this is very clear. First one is apoptosis and second one is autophagy. Second one is autophagy. And then apoptosis, if you will go into the detail, these are of two types, right? First one is caspase dependent and second one is caspase independent, right? And then you will see caspase dependent. There are two type of caspases. One is the receptor based caspase 8, receptor based, and this belongs to extrinsic mechanism. This belongs to extrinsic mechanism. And mitochondria also have some caspases, right? And this is called as the intrinsic caspases or intrinsic apoptosis mechanism. Now it's clear to you, there are two types of apoptosis, extrinsic apoptosis and intrinsic apoptosis. Extrinsic apoptosis and extrinsic apoptosis. ठीक है? Extrinsic apoptosis and intrinsic apoptosis. So, which is the cause? Cause may be the any factor, any damage, right? Any physiological condition. But ultimately, programming starts with first step. What is the first step? Activation of caspases, right? Activation of sapna bolo caspases, right? So programming starts with what? First step, bolo. First step is the activation of caspases. Caspases are of two types. One is the mitochondrial caspases, which is called as the intrinsic, and receptor based caspases, which is called as extrinsic. Clear? So now this is clear to you. Cell death are of three types: apoptosis, autophagy. This is the first, this is second, and this is the third, necrosis. What is the feature of the apoptosis? As you have seen, cell shrinkage, chromatin condensation, and proteolytic disassembly, caspases activation, membrane bleeding, energy dependent, and overall this is very important, no inflammatory response. अगर आप देखो necrosis के केस में, so there is a inflammatory response, right? This is the major difference. If you'll see another difference, cell swelling and rupture, but here cell shrinkage. Here is the cell shrinkage, right? And what are the major player, major type? There are two types: intrinsic pathway and extrinsic pathway. Intrinsic pathway, this is controlled by the mitochondrial caspases 9. What is the name of caspases? Mitochondrial caspases 9. Extrinsic caspases 9. Receptor caspases, that is death receptor caspases, which is 8 by 10, not 9. 9 is always internal, ये याद रखो, 9 is always internal and 8 by 10 is external. ठीक है, 9 is internal, right? 9 is internal. What is the function? Actual में अगर आप देखो, intrinsic pathway is a kind of like जैसे अगर मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति पहले ऐसे ऐसे रहेगी, है ना? तो फिर जो बनाने वाला कुम्हार है उसको कटाई छटाई करेगा, इसका मुंह ऐसे बनाएगा,
आंखें ऐसे करेगा, मतलब दिस इज कॉल्ड एज द sculpturing, right? Sculpturing means kind of artwork, means whatever the beauty a animal is getting after the maturity, this is because of apoptosis. Which type of apoptosis? Intrinsic apoptosis. किस तरह की apoptosis हो रही है यहाँ पे sculpturing में? This can be asked. In the sculpturing, Intrinsic. which type of apoptosis? Intrinsic. Right. जबकि death जो हो रही है because of damage, this is regulated by the extrinsic pathway, which contains certain death receptor. The death receptor belong to caspase Extrinsic part. caspase 8/10, right? Death receptor extrinsic pathway. ये इसमें कंफ्यूजन नहीं ना, बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जामिनेशन के टाइम पे, बहुत जल्दी बोलता है आदमी और इधर का उधर का इधर कर देता है घबराहट में। तो जब भी एक्सटर्नल डैमेज होगा तो एक्सटर्नल caspase एक्टिवेट होगा, एक्सटर्नल caspase रिलेटेड टू 8/10. And what is the role in immune system? You can see thymic negative selection of T cells, B cell maturation, and CTL killing mechanism. General function, embryonic development, and cellular homeostasis. Autophagic बाद में आते हैं, necrosis. बता दें what is necrosis? Passive cell death. Passive cell death due to catastrophic ATP depletion. यानी ATP अचानक से consume हो गई. That's why this problematic condition is there. What is the problematic condition? Cell swelling होने लगी, rupturing होने लगी, inflammation होने लगी टिश्यू में, जबकि inflammation is not possible in the apoptosis. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? And in the necrosis, which is the major player, या कौन से मैकेनिज्म से होता है? Because of reactive oxygen intermediate. किससे होता है? Reactive oxygen intermediate. Reactive oxygen intermediate, lysosomal protease. And lysosomal protease. ये necrosis के फीचर है, जबकि intrinsic and extrinsic pathway, this is the feature of apoptosis. तो ये डिफरेंस है। हाँ, हमेशा तो को कहाँ फंसाएंगे? दो जगह फंसाते हैं, या तो डिफरेंस पूछ दें तो आपको पता ही नहीं होगा डिफरेंस कहाँ पे है। सेकेंड, मेजर प्लेयर पूछ दें, जनरल फैक्शन तो पता है कि डेथ ही होनी है, राइट? सो नेक्रोसिस इज नेक्रोसिस में, हाँ, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है? एपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यस सर, सेल सिंक हो जाता है, इसमें स्वेल हो जाएगा, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, दिस इज ड्यू टू इंजरी, प्रोटियोल एक्टिविटी से सामने है ना, दिस इज ड्यू टू इंजरी, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग। हाँ, और यहाँ पे इंडक्शन ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट, ये पूछा हुआ था, ये CSI में पूछा हुआ था, विच इज एनर्जी इंडिपेंडेंट? दिस इज एनर्जी, zero energy required and no inflammatory response. एपोप्टोसिस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी डिपेंडेंट है। Apoptosis energy ATP dependent है। एनर्जी डिपेंडेंट है। हाँ सर, उल्टा हो गया, ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिप्लीट हो रही है ना। हाँ, यहाँ पे ATP डिप्लीट हो रही है, जबकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड। पैसिव सेल डेथ हो रहा है, इसलिए एटीपी की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसिव सेल डेथ है, एंड रप्चर हो जाए, और ये हाँ ये एक्टिव सेल डेथ है, ये एक्टिव सेल डेथ है, जबकि नेक्रोसिस इज ए पैसिव सेल डेथ। तो ये अच्छे से याद हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अच्छे समझ लो गोपाल जी,
सर एपोप्टोसिस और एटोफैगी में मतलब दोनों सेम ही है, इसमें भी एनर्जी डिपेंडेंट, वो भी, ये भी प्रोग्रामिंग, वो भी इसमें भी नो इन्फ्लेमेटरी। सर दोनों में क्या फर्क है, ऑटोफैगी और एपोप्टोसिस में? इनका मेजर प्लेयर देखो ना, जैसे वो एक्सटेंसिव पाथवे से हो रहा है, इसमें ऑटोफैजी जीन है ना, फॉर एग्जांपल एटीजी जीन या बैक्लिन, है ना, इसमें पाथवे अलग है, PI3 के पाथवे और क्लास 1 पाथवे, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 3 PI3 के पाथवे, and then another pathway exists that is called the tuberous sclerosis complex positive regulator और TOR negative regulator। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्कल्पचरिंग का काम हो रहा है, सेलुलर हेमोस्टेटिस का, बट यहाँ पे बैलेंस, शॉर्ट टर्म एनर्जी डेफिशिएंट और डिस्टिंक्ट सुसाइड प्रोग्राम। डिस्टिंक्ट सुसाइड प्रोग्राम मतलब जैसे यहाँ पे अब अगर आप बात करो पैथोजन की, है ना, इम्यून डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन, तो उस केस में ऑटोफेजी मस्ट है, अदरवाइज द डिफेंस सिस्टम विल नॉट बी एबल टू वर्क। इसलिए इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट सुसाइडल प्रोग्राम, कि अगर इन्होंने कैप्चर कर लिया एंटीजन को तो उनको किल करना ही है, राइट। दिस इज डिस्टिंक्ट सुसाइड प्रोग्राम, मतलब एक्टिवेशन की बात तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, जैसे हमारे बहुत जीनियस जो बच्चे होते हैं उनकी फीचर्स है, एक बार वो प्रिपरेशन में लग गए तो जब तक कंपटीशन क्लियर नहीं हो जाएगा उसको कच्चा चबा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दो सोचते रहेंगे। यहाँ पे लाइसोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है, लाइसोसोमल बेस्ड, है ना। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लाइसोसोम का रोल नहीं है, ये डिफरेंस पूछ रहे थे ना आप, इसमें लाइसोसोम का डिफरेंस नहीं, सिमिलैरिटी है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बट नॉट ट्रिगर्ड बाय स्टार्वेशन। एपोप्टोसिस नॉट ट्रिगर्ड बाय स्टार्वेशन, ऑटोफेजी ट्रिगर्ड बाय स्टार्वेशन, है ना। सिमिलैरिटी इंडेक्स में एनर्जी डिपेंडेंट, ठीक है, ब्लेपिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट ब्लेपिंग, ब्लेपिंग इज नॉट ए सिम्टम, डीएनए डिग्रेडेशन इज नॉट ए सीक्वेंशियल वे। जब आप नहीं आए थे तो मैंने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एपोप्टोसिस। The first is the shrinkage, second is loss of adhesion, third is formation of plaques, fourth is the DNA fragmentation, and fifth is the activation of phagocytosis। तो ये हमने स्टेप अभी डिस्कस किए थे, और ये हमने टाइप डिस्कस किए थे कि one apoptosis is caspase dependent, which is both intrinsic as well as extrinsic, and other is caspase independent, that we'll discuss later on। तो ये क्लियर हो गया between the apoptosis, autophagy and necrosis। You have any question you can ask। सर एपोप्टोसिस सेल साइकिल को हॉल्ट करेगा, अगर डीएनए मतलब रिपेयर हो गया देन रीस्टार्ट करेगा। जो ऑटोफेजी है ये जब स्टार्वेशन होगा तभी होगा बॉडी में, राइट? यस यस यस, करेक्ट। वो स्टार्वेशन के केस में होगा, जैसे ऑटोफेजी लाइसोसोम। पर दोनों ही प्रोग्राम्ड है, प्रोग्राम दोनों है, दोनों ही प्रोग्राम है। दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द एपोप्टोसिस एंड ऑटोफेजी, ओके। But lysosomal is there for the degradation, but lysosomal is not in the apoptosis। So how the apoptosis was discovered? So apoptosis मतलब लोग जैसे एजेड होते हैं, बुढ़े होते हैं, इसीलिए CSIR ने प्रोग्राम सेल के डेथ के साथ जोड़ दिया है एजिंग। तो एजिंग अभी हम नहीं पढ़ेंगे, एजिंग इज ए अनदर मैकेनिज्म बट वेरी सिमिलर टू दैट। इफ समथिंग इज फॉलिंग ऑफ, if something is falling off, this is very similar to apoptosis। So that's why the term falling off, from the falling off term, कोई चीज एजेड हो रही है, डिग्रेड हो रही है, अलग हो रहा है, तो इसमें देखा गया कि एक एक सेल अलग हो रही है। एक सेल है बड़ी सी, उससे छोटे छोटे सेल अलग हो रहे हैं, एपोप्टोसोम बन रहे हैं, एपोप्टोटिक बॉडी बन रही है जिसको ब्लेब्स बोल रहे हैं, राइट। सो दिस इज द स्पेशल फीचर कि एक पूरी सेल से, एक एक बिल्डिंग से एक एक ईंटें गिर रहे हैं।
So that's why this was the term, and its literal meaning is related to falling off. This is a built-in mechanism, self-destruction suicide type of program cell death based upon morphological features. So they have very strict morphological features. Means they are following certain steps. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. All these steps they are following. So why apoptosis is activated? This is another question. Now this is destructive, or this is preventing the damage. Actually, if you'll see, so they are destructive for only those cells which are programmed, but rest of the cells are going to be saved. So that's why apoptosis, you can say it's a saving mechanism. Saving mechanism. For whom this is saving mechanism? For nearby living cells. Nearby living cells. Right? So that's why this is programmed. Because cell is having so many things. Cytoskeleton are there, plasma membrane are there, and nucleus is there, DNA is there. So certain distinct pathways followed, right? And ultimately what you can say, if they are breaking down the cell cytoskeleton, only then you can see the separation of blebs. First will be the multiple bulge formation, and you are seeing them as a blebs. This is actually bulge. And then they are separating like a leaves fall from the plants, right? So these blebs can separate from the cells, taking a portion of the cytoplasm, and phagocytosis cell eventually consume them and fragment them. So what you can conclude, apoptosis keep damaged cellular content from spilling out, मतलब कोई लीकेज नहीं होने देता, क्योंकि लीकेज होगा तो अगर मान लो उसके अंदर वायरस है तो वो क्या करेगा बेटा, अगर लीकेज हो जाएगी तो spilling can infect other nearby cells. So spilling is not allowed. That's why this is the 5-step mechanism. How many step mechanism? 5-step mechanism. Right? तो फिर से बता दूं कि याद है? चलो बताओ फटाफट. पहला क्या हो रहा था? Shrinkage. Volume shrinkage. And nucleus. Second, वॉल्यूम श्रिंक कर गया. वॉल्यूम श्रिंक कर गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा? लिख भी नहीं रहे, लिखो फटाफट बेटे. ये इतनी देखो 3 ही 4 स्लाइड में मतलब मैक्सिमम चीजें कवर हो गई, इसलिए आप लिखते रहो साथ में. राइट. फर्स्ट वन इज आपको बताया था सेल नहीं है, नहीं कहाँ चला गया? हाँ ये था loss of adhesion. Second one is the loss of adhesion. Third one is the formation of blebs. ठीक है, तो याद रखना. फर्स्ट श्रिंकेज, सेकेंड लॉस ऑफ एडेशन, मतलब वो सबस्ट्रेटम से नहीं अटैच होंगे. फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब्स, थर्ड ब्लेब्स हो गया. फोर्थ डीएनए फ्रेगमेंटेशन. चौथे स्टेप में डीएनए फ्रेगमेंटेशन है. एंड पहले मेम्ब्रेन का साइटोस्केलेटन डैमेज हो रहा है तो ब्लेब्स बन रहा है, फिर न्यूक्लियस डिग्रेड हो रहा है एंड डीएनए फ्रेगमेंटेशन, एंड देन फाइनली फैगोसाइटोसिस. क्लियर. तो स्पिलिंग नहीं होगी, इसीलिए इमीडिएट फैगोसाइटोसिस हो रही है. इमीडिएट फैगोसाइटोसिस, राइट. स्पिलिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल in the apoptosis. Why? Because if this apoptosis is activated because of virus attack, virus in the spills, they can attack to nearby cells. I think this is clear.
हो गया क्लियर? एनी डाउट? तो ये पता कैसे चला? फेगोसाइटोसिस भी साथ में होती है. तो इफ यू विल सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पिक्चर, देन यू कैन सी दिस वन, राइट? सो व्हाट इज दिस? Apoptotic cells, pycnotic nuclear fragment. Nuclear fragment is in the process of disintegration. This is the macrophage nucleus, right? That's why this is called as the simultaneously phagocytosis of apoptotic body. Bleps का alternative नाम क्या है? What is the alternative name of bleps? बोलो, इसको क्या बोलोगे? Apoptotic body. bodies. Apoptotic bodies. ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस ऑफ एपोप्टोसिस? बस ये 4 स्लाइड है, आज खत्म है. इसके बाद 102 स्लाइड है जो मैं टाइम पास करूंगा. ठीक है, तो व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस ऑफ एपोप्टोसिस? बोलो मेरे साथ. फर्स्ट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. थर्ड, जो नेगेटिव सिलेक्शन बार बार कह रहे थे कि टी सेल्स का नेगेटिव सिलेक्शन होता है, यानी जो सेल्फ के लिए बन गई है उनकी किलिंग, तो वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू ही होगा, राइट? सपना तुम्हें समझ में आ रहा है? एंड फोर्थ वन, सीटीएल किलिंग, इम्यून सर्विलांस, वायरल इन्फेक्शन. फिफ्थ वन इज terminating active immune response, tight regulation of cell number. For example, in the GI, uterus, skin, bone marrow, right? इनका tight regulation. नहीं तो बहुत बढ़ने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इनका एपोप्टोसिस होगा, राइट? बहुत लोगों को देखोगे 6 उंगलियां हो जाती हैं, है ना? तो पैरों में 6 उंगलियां नहीं होनी चाहिए. एक्स्ट्रा डिजिट्स आर आल्सो अंडरगोइंग apoptosis. So there are 2 pathways for the removal, either via extrinsic pathway or via extrinsic pathway. Extrinsic pathway mostly involves Fas ligands TNFR activation. कौन सा? Fas ligands TNFR activation. ठीक है, याद है इतना? Fas ligands and TNFR activation. इतना क्लियर? ठीक है. सो दिस इज कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू सेल स्ट्रेस. सेल स्ट्रेस से जो मरती है सेल, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टर्म गिवन टू सेल व्हिच आर डाइंग बिकॉज ऑफ सेल स्ट्रेस? बोलो. सेल स्ट्रेस से जो मरती है उसको क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस बोलेंगे? यस और नो? नेक्रोसिस बोलेंगे बेटा? आफरीन? सेल स्ट्रेस से जो मरती है उसको क्या बोलते हैं? चलो, चलो. I think I'm audible to all of you. This is clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस हो गया, एंड सेंसेंस इज ए काइंड ऑफ एजिंग, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम ये क्लियर कर लें. फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब क्या डेफिनेशन है फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस? मतलब व्हाई एपोप्टोसिस, यू कैन से, ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि एपोप्टोसिस इज ए कर्स और एसेंशियल. अच्छा. कर्स तो नहीं बोल सकते ना. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूजेस. हाँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में
है ना, ये एडल्ट में डैमेज कन्वर्ट होगा, डेवलपमेंट में, हाँ नहीं तो एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। इम्यून सिस्टम में जो नेगेटिव सिलेक्शन है वो नहीं होगा तो टी सेल खुद के सेल को हाँ, मार थाइमिक डालेगी, सेल नेगेटिव। टी सेल को मार डालेगी। सीटीएल किलिंग में अगर ये एपोप्टोसिस एक्टिवेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन और इम्यून सर्विलांस, तो फिर ये डिफेंस का पार्ट हो गया ना, ये भी डिफेंस का हाँ पार्ट। ये सर, आप ये बता दो कि कहाँ से हो, सारा डिफेंस का पार्ट है ना। सेल नंबर अगर सचो बोन मैरो में बढ़ जाए, आदमी चल नहीं पाएगा, है ना, जीआई ट्रैक्ट में बढ़ जाए, यूरिन रुक जाएगी, यूटेरस में बढ़ जाए तो प्रॉब्लम ही होगी, स्किन में बढ़ जाए कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। तो दिस इज द कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू सेल स्ट्रेस। समटाइम्स सेल स्ट्रेस की वजह से नेक्रोसिस होने लगती है, राइट, सेल की नेचुरल डेथ नहीं होती है, नेक्रोसिस होने लगती है, तो उसको कंपनसेट कर लेता है ये। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज नॉट ए कर्स रादर देन वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहीं पे याद हो गया कि एक्सटेंसिव पाथवे ऑलवेज यूज फास्ट लिगेंड्स एंड टीएनएफआर एक्टिवेशन। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। इंटेंसिव पाथवे, ग्रोथ फैक्टर रिमूवल, एक्सआरटी एंड अदर मैकेनिज्म। तो चलो देख लेते हैं एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस फ्रॉम outside the cell, that is extrinsic pathway. So if you are talking about the extrinsic pathway, what does it mean? It means suppose killer lymphocyte is there and this is a target cells. The question rises how they are activating the apoptosis. So there is a FAS receptor on the target cell and this is the FAS ligands, right? This is a FAS ligands, FAS receptor. Now you can see FAS ligand, FAS receptor interacting and adapter proteins. Suddenly you can see the role of adapter protein. What they are doing? They are making active to whom? They are activating procaspase 8. जब ये procaspase 8 को एक्टिव कर रहे हैं, adapter protein bind to intracellular aggregated FAS proteins, जो कि FAS है ना, FAS ligands and activate FAS protein on the surface of target cell, और अंदर भी aggregate होने लगते हैं FAS protein, बाहर भी है और अंदर भी है। तो जैसे aggregate होगा तो adapter protein will bind to FAS protein and this is responsible for activation of है ना, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस। किसका एक्टिवेशन होता है? कैस्पेस एक्टिवेशन। कैसे होता है भाई? व्हेन फास्ट प्रोटीन प्लस एडाप्टर, फास्ट प्रोटीन प्लस एडाप्टर बोथ are aggregating and forming complex, then there is activation of बोलो कैस्पेस 8। एक्सटेंसिक में हमेशा बताया था एक्सटेंसिक होगा तो कैस्पेस 8 and 10 हाँ 8/10 आप कह सकते हो, and 10 भी होगा, हाँ 8/10 लिख लो and then activation of apoptosis, right? So this is a अरे वही चल रहा है, कितनी कॉपी होगी। अब इंटेंसिव पाथवे देखो, इंटेंसिव पाथवे में सपोज एनीथिंग हैपेंस, डीएनए इज डैमेज्ड और एनी काइंड ऑफ वायरल अटैक इज देयर, देन यू कैन सी हाउ इन इंटेंसिव पाथवे कैस्पेज इज एक्टिवेटेड। क्योंकि कैस्पेज एक बार एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? एपोप्टोसिस। क्लियर? तो इंटेंसिव पाथवे में सी हाउ कैस्पेसिस 9 इज एक्टिवेटेड। तो कैस्पेसिस 9 इनएक्टिव फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? प्रोकैस्पेसिस। प्रोकैस्पेसिस मीन्स इनएक्टिव कैस्पेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल चेंजेस देयर इज एक्टिवेशन। अब
पहला स्टेप क्या है वो बोलो. What is the first step? Insert mitochondria. Insert mitochondria. अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इंसर्ट हुई, Montreal. फिर क्या हुआ? एडाप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो गया. ठीक है ना? एडाप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो गया. तो व्हाई एडाप्टर प्रोटीन हैज एक्टिवेटेड एंड व्हाट इज द नेम? साइटोक्रोम सी चूंकि रिलीज हुआ था ढेर सारा, किसी के रिस्पॉन्स में ही एडाप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगी. ये ध्यान देना, इस चीज के रिस्पॉन्स में एडाप्टर प्रोटीन आएगी. तो यहाँ पे रिस्पॉन्स किसका है? A lot of cytochrome C have been released. क्या रिलीज हुआ? Lots of cytochrome C. ढेर सारा रिलीज हुआ जैसे बाहर का डैमेज आया. अब साइटोक्रोम सी के रिस्पॉन्स में there is a adapter protein. What is the name? एडाप्टर प्रोटीन का नाम क्या है? APAF1. APAF1 is FF1. activated, which is adapter. वहां भी देखो हुआ था एक्सटर्नल केस में, है ना एडाप्टर. यहाँ भी एडाप्टर आ गए. तो साइटोक्रोम सी APAF. अब क्या हुआ? साइटोक्रोम सी is released and binding to APAF1. Right, aggregation of APAF1 and binding of pro-caspases 9. So this is intracellular APAF1 bind and aggregate. अब क्या होगा? पहले तो दो कॉम्प्लेक्स बना था, APAF1 का प्लस साइटोक्रोम सी का. तो ये जैसे ही बना, क्या एग्रीगेट होने लगा? प्रो-कैस्पेसेस 9. क्या एग्रीगेट हुआ? प्रो-कैस्पेस 9. तो जैसे प्रो-कैस्पेस 9 आया, यहां पे अब दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, APAF1 प्लस प्रो-कैस्पेस 9. बाहर कौन गया? साइटोक्रोम सी. प्रो-कैस्पेस 9. इतना क्लियर हुआ? बाहर चला गया साइटोक्रोम सी, बन गया APAF प्रो-कैस्पेस 9. अब इसका थोड़ा सा पार्ट डिग्रेड होगा and then you can see activation of what? Activation of what? Pro-caspases 9. Activation of, तो एक्टिवेशन हो गई तो फिर बाकी काम हो गया. तो ये क्वेश्चन सीएसआर में पूछता है कि इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे which adapter protein is involved? What is the name of adapter protein? बोलो. APAF1. हाँ, APAF1. APAF1 in response to cytochrome C. And then if this aggregate is going to form, there is a deposition of inactive pro-caspases 9. और जब ये भी हो गया complex, तो finally you can see there is activation of caspases. तो यहाँ का एक पोर्शन ये डिग्रेड हो गया और यहाँ पे आ गया. तो दिस इज द एक्टिवेटेड caspases 9. Now you can see the steps involved and there is no inflammation. आफरीन क्यों चली गई पता है? आज मैंने झूठ बोल दिया था कि 4 स्लाइड में खत्म हो गया, जबकि ये टोटल 102 स्लाइड है, 102 स्लाइड है. उसको लगा खत्म हो गया, वो चली गई. उसको मैसेज डाल दो अभी खत्म नहीं हुआ, आ जाओ. तो सेल श्रिंक एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस, ये सारा ब्लेबिंग बता दिया आपको. एपोप्टोटिक बॉडीज, ये टर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द न्यू टर्म फॉर ब्लेबिंग मालिक. दिस इज कॉल्ड एज द एपोप्टोटिक बॉडी. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि हेल्दी सेल कैन इधर गोज टू नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस? सेल श्रिंकेज, सेल वॉल्यूम, लॉस ऑफ प्लाज्मा इंटीग्रिटी, प्लाज्मा ब्लेबिंग, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडी. So now क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे
एक्टिवेट कर सकता है, सॉरी, एक्सट्रिंसिक पाथवे कैन एक्टिवेट इंट्रिंसिक पाथवे. यस, extrinsic pathway can activate what? बोलो. Intrinsic pathway. लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे कभी भी एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर सकता. ऑलवेज एक्सट्रिंसिक पाथवे कैन एक्टिवेट intrinsic pathway if pro-apoptotic BID protein is active. What is the name? BID protein is active. All right. Which receptor is there? Death receptor. And extrinsic pathway, when signal molecule FOS and FOS protein are there, then you can see the activation of death receptor, then activated इनिशिएटर कैस्पेज इज द एज. तो CSR में अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. अब आप देख रहे हो, दिस इज द इनिशिएटर कैस्पेज एज. सेकेंड टाइप ऑफ कैस्पेज फॉर्मेशन, पहला तो इनिशिएटर था, सेकेंड वन वाज एग्जीक्यूशनर, सेकेंड वन वाज एक्सक्यूशनर. तो पहला जब इनिशिएटर बनेगा तभी एग्जीक्यूशनर बनेगा. एंड ये CSR पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूशनर caspases. What is the name of executioner caspases? तो क्या क्या नाम है, अभी यहीं पे लिख लो. Caspase 3, 6 and 7. 367. तो एक्सटेंसिव के केस में व्हाट इज द एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस? 367 execution. 367. Right. 367. 367. 367 याद रखना. ठीक. अक्षिका का लैपटॉप खराब हो गया. सो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेना तुम लोग, हमने शेयर कर दिया है. ठीक है. अपने स्टूडेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं है. अपने मेरिट लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, वो संडे को होगा 10 बजे से. ठीक, क्लियर हो गया. तो अब ये क्वेश्चन सीसर का अगेन था कि फॉर द कैस्पेसेस 8 व्हाट इज एक्सक्यूशनल कैस्पेसेस. नोट कर लो, executioner caspases वो था 367. and for the caspases 9 what is the executioner caspases? same. 8 के लिए भी सेम है और 9 के लिए भी सेम है. what is the same? 367. 367. okay, 367. Okay, beta, this is clear. So sometime procaspases 9 is called as the card domain, and adapter PAF1 called as the card domain. And there is a cytochrome C released, and then with the help of cytochrome C, procaspases 9 and adapter, जब तीनों मिल जाएंगे तो this will be called as apoptosome. एक बार CSR ने पूछा था कि एपोप्टोसोम में क्या क्या होते हैं. एपोप्टोसोम, ये टर्म नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. जितना भी इंपॉर्टेंट हम बोलता हूँ फटाफट नोट कर लिया करो. ये पूछता है व्हाट इज द एपोप्टोसोम. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? साइटोक्रोम सी इन्वॉल्व है. यस. प्रोकैस्पेसिस 9 है. यस. PAF1 है. यस. तो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? बोलो, एपोप्टोसोम. इसी बारे में और भी चर्चा करेंगे बाद में. तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई शुड ए सेल कमिट सुसाइड. तो हमने पहले ही बताया इसके बारे में. स्कल्पचरिंग, हाउ दे आर स्कल्पचरिंग.
you can see the frog, you can see the human, right? तो ये तो सबका कॉमन होता है ये वाला, ठीक है ना? तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ह्यूमन में और फ्रॉग के एम्ब्रियो में, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट. अब ये देखो डिजिट आ रही थी इसकी, बहुत सारे डिजिट तरह फ्यूज थी, ऐसे 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 थी, ठीक है ना? लेकिन फ्यूजन को एपोप्टोसिस मैकेनिज्म से डाइजेस्ट किया. Program cell death is need for proper normal development, resorption of tadpole tail in frog, formation of finger and toes, ये पूछा हुआ है, finger and toes of fetus, and sloughing of endometrium at the start of menstruation. जब भी menstruation cycle होगी तो there is apoptosis, and this sloughing of endometrium, example पूछ सकता है. This is the example of, बोलो, एपोप्टोसिस. हाँ, और ब्रेन का जो शुरू में एम्ब्रियो होते हैं उनमें सिनैप्स एंड न्यूरॉन्स वो सारे फ्यूज होते हैं, अलग होते नहीं, बाद में ये अलग हो जाते हैं. तो कनेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर कनेक्शन, राइट. सेकेंड रीजन, प्रोग्राम सेल डेथ need to destroy following threats, need to destroy threats which are dangerous for integrity of organism. For example, cell infected with virus, cell of the immune system, which are self, against the self, antigen, cell of DNA damage, cancer cells. Apoptosis in physiological situation, destruction and during embryogenesis, involution of hormone-dependent tissue, cell loss in proliferating cell population, elimination of harmful self-reactive lymphocytes, death of host cells. तो ये समझ में आ गया आपको. टनल, व्हाट इज द टनल मेथड? तो अगर आप देखना चाहते हो एम्ब्रियो में तो ये देखो, तुम्हें टनल मेथड से दिखेगा कि ऑल द टोज एंड फिंगर्स वेयर ज्वाइंड, बट बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस यू कैन सी द क्लियर डिफरेंशिएशन. लेकिन यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट एपोप्टोसिस. क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस, इनकम्प्लीट एपोप्टोसिस, राइट. इनकम्प्लीट, तो जहां जहां फ्यूजन है तो टनलिंग मेथड से यू कैन सी द कलर इज ब्लैक, कलर इज ब्लैक. एम्ब्रियोजेनेसिस में एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस सेल्स, है ना, नॉन सिलेक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स, एंड देन इम्यूनिटी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ऑर्गेन साइज बहुत ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए. टिश्यू रिमॉडलिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है. एपोप्टोसिस इज एसेंशियल और नॉट फॉर टिश्यू रिमॉडलिंग. व्हाट इज टिश्यू रिमॉडलिंग? दोज ऑर्गन व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, जैसे मेल में मेमोरी ग्लैंड का आना या वर्जिन मेमोरी ग्लैंड का आना, दे मस्ट बी लेटर ऑन in case of non-pregnancy, non-lactating, all the cells are dying by apoptosis, है ना? Otherwise there will be heavy cell formation, right? Prostate gland, अगर testosterone release हो रहा है तो cell size can be controlled. This control of cell size in the prostate gland is because of apoptosis, right? Otherwise ज्यादा बड़ा large cell हो जाएगा, then it will destroy the beautification. जानवर जैसा लगेगा ना फिर. तो ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारा हो गया ना, ये सारा डिस्कस कर लिया. प्री एपोप्टोटिक, अर्ली एपोप्टोटिक एंड लेट एपोप्टोटिक. यू कैन डिवाइड
if there is a chemotherapy, suppose exposure of radiation and killing of cancer cell. तो यहाँ पूछ सकता है कि in the case of exposure of radiation, in case of exposure of radiation, apoptosis will be activated or not? Activated or not? तो क्या लिखोगे? Yes. And what will be the stages? There will be 3 stages. First one, pre-apoptotic, early, and third one is the late. Okay, classical changes ये बता दिया है. Classical changes, histology, around wall mass of intensely eosinophilic cytoplasm, fragment of dense nuclear chromatin, and these are the biochemical changes. Activation of caspases, proteolysis of cytoskeletal protein जिसकी वजह से ब्लिपिंग बनती है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ protein molecules, fragmentation of nuclear chromatin, by activation of nucleases. Nucleases भी एक्टिव होता है, तो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं. तो हम लोग को बहुत डेप्थ में स्टडी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं. तो भाई न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगा तो वो ना पूछ के दे कैन आस्क यू एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियसेस, मेम्ब्रेन अल्टरेशन एंड रिकॉग्निशन बाय फैगोसाइटोसिस. तो ये ऑलरेडी एक्सट्रिंसिक पाथवे बाय डेथ रिसेप्टर, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस एंड सेल डेथ. इंट्रिंसिक पाथवे साइटोक्रोम सी, कैस्पेसेस, सेल डेथ. ठीक है. तो सपोज हेल्दी सेल है, डेथ सिग्नल आती है, देन इमीडिएटली कमिटमेंट टू डाई हो जाता है ना. देन एक्सक्यूजनल कैस्पेसेस, पहले तो इनिशिएटर कैस्पेसेस एंड देन एक्सक्यूजन कैस्पेसेस एंड देन एनगल्फमेंट. क्लियर? Activation, and then the next question can be asked, how the procaspases is activated? How procaspases is activated? Okay, तो caspases ये भी पूछा हुआ है. Caspases is the family of which protease? This is a specific name, and the name is cysteine aspartyl specific protease. Cysteine aspartyl specific protease. And in the absence of stimulation, caspase exits in cell as an inactive precursor. Activation of caspases by disc results in enzymatic removal of those portions, right, which is not required. So release of smaller fragment is there, making them inactive. तो ये inactive है, and cutting off this small portion makes them active. ठीक है ना, making them active. So the active caspases then diffuses into cytoplasm and cleave target protein. तो हमने अभी डिस्कस किया था, what are the two major class of caspases? Initiator caspases and then executioner. तो ये पूछा हुआ था सर, कई बार पूछ के खूब कंफ्यूज किया लोगों को. 8, 9, 10 इनिशिएटर क्या होगा? बोलो, याद करो मेरे साथ. 8, 9, 10 इनिशिएटर. एक्सक्यूशनर 3, 6, 7. 3, 6, 7. 8, 9, 10 इनिशिएटर. देखने में ये लगता है कि ये इनिशिएटर नहीं होगा, ये एग्जीक्यूशनर होगा, क्योंकि इसकी नंबर ज्यादा है भूलने के केस में. तो उल्टा याद रखना, इनिशिएटर हमेशा बड़ा नंबर का है एंड एग्जीक्यूशनर 3, 6, 7. 7 पे खत्म होता है तो फिर 8, 9, 10 शुरू होता है. ठीक है ना, देख रहे हो ना. 3, 6, 7 फिर 8, 9, 10. तो एग्जीक्यूशनर ऑलवेज 3, 6, 7. Execution caspase destroy actual target in the cell to execute apoptosis. ठीक है. What is the FAK? Some cellular target of caspases. Caspases
these are the targets, FAK, focal adhesion kinase, focal adhesion kinase, right? तो होता क्या है कि there is a focal adhesion molecule which are responsible for adherence of normal cells. अब अगर इनका इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो there will be detachment of apoptotic cell from its neighbor. तो टारगेट करते हैं FAK को. Lamins, important component of nuclear analog, तो इनको भी डिसअसेंबली, डिस्ट्रॉय नहीं लिखा है, क्या लिखा है? डिसअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लेमिना. क्या करते हैं एपोप्टोसिस? कैस्पेजेस, कैस्पेजेस की टारगेट है डिसअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लेमिना, है ना, इनएक्टिवेशन ऑफ FAK. सेकंड टॉपिक हो गया. थर्ड, एक्टिन, क्लीवेज ऑफ एक्टिन which is responsible for changes in the cell shape and surface behavior. And endonuclease CAD responsible for chromosome fragmentation. CAD cuts DNA into small fragments. CAD normally binds to an inhibitor protein. Caspases cleaves the inhibitor protein and activates CAD. Enzyme involved in DNA repair. No need to repair DNA in the cells. Right? So कुछ एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देते हैं कैस्पेजेस. तो साइटोक्रोम सी, नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द साइटोक्रोम सी बेस्ड इंटरनल कैस्पेजेस एक्टिवेशन. तो एपाएफ बताया था हमने, एपाएफ एंड साइटोक्रोम सी बोथ आर फॉर्मिंग, बोथ आर कंबाइनिंग, है ना. अब बनेगा एपोप्टोसोम. अब देखो आ गया एपीएफ साइटोक्रोम सी, अब आ गया ये प्रोकैस्पेजेस 9, ग्रीन वाला. तो ग्रीन रिमेन इन द सेंटर, ये सर में पूछा हुआ था, कैस्पेजेस 9. अब ये बन गया एपोप्टोसोम. तो एपोप्टोसोम में क्या क्या आ गया? फर्स्ट एपीएफ, सेकंड साइटोक्रोम सी, एंड थर्ड कैस्पेज 9. कैस्पेज 9. क्लियर? अभी तो याद हो गया आपको ना एपोप्टोसोम. अब जब एपोप्टोसोम आएगा तो ओनली कैस्पेज 9 इज नॉट देयर इन द इंटरनल, देयर इज अनदर एग्जीक्यूशनर. ये तो इनिशिएटर था, ये क्या था? इनिशिएटर था. अब आएगा एग्जीक्यूशनर. एग्जीक्यूशनर में 367. ठीक, क्लियर ना? क्लियर सर. तो इंट्रिंसिक पाथवे में सर कैस्पेज 3 आएगा, 367, एग्जीक्यूशनर 367, एग्जीक्यूशनर तीनों ही आएगा. हाँ तीनों ही आएगा. 367 एग्जीक्यूशनर का मतलब ये 367. ठीक है. तो 9 यहाँ पे 367 को एक्टिवेट कर रहा है, 8 एक्टिवेट कर रहा है 367 को, वो भी करेगा. 367. ठीक है. 8/10, 9. So how this system was discovered? So this system was first discovered in the nematode C. elegans. Later on, which was the model for study of complete mechanism of apoptosis, and the first caspases was isolated from this nematode C. elegans. And this was found that caspase is a special class of protease which is called as a cysteine protease. Cysteine protease that triggers most of apoptotic response. Kinase, nuclear lamins, cytoskeleton, and DNA endonuclease. Right? Cysteine protease triggers kinases, nuclear lamins, cytoskeleton, and DNA endonuclease. तो आपको क्लियर हो गया? नाउ कंपेयर द सिस्टम. पूछने वाली थी. क्या सर? डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो स्टेप था एपोप्टोसिस में, तो मैं पूछने वाली थी कि एंडोन्यूक्लियस ही लगेगा ना सर उस स्टेप के लिए, तो आपने अभी बता ही दिया. अच्छा, डीएनए एंडोन्यूक्लियस तो होगा तभी तो टूटेगा, नहीं तो टूटेगा नहीं ना. न्यूक्लियर लेमिन के लिए पूछ सकता है, न्यूक्लियर लेमिन कैसे टूटा था? सिस्टीन प्रोटीजेस के द्वारा, है ना. लेकिन यहाँ पे डीएनए एंडोन्यूक्लियस को एक्टिव कर रहा है ना. साइटोस्केलेटन में, न्यूक्लियर लेमिन में काइनेज एक्टिवेशन.
तो दीज आर द थिंग्स। तो ये तो बेसिक चीज है ना। फर्स्ट था कि सिस्टम प्रोड्यूस का फंक्शन लोग जान रहे थे, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ एपोप्टोटिक मैकेनिज्म। जब इनको ये चारों दिखा कि अरे ये तो काइनेज का भी फंक्शन कर रहा है, न्यूक्लियर लेमन को भी डिसॉल्व कर रहा है, साइटोस्केलेटन को भी डिसॉल्व कर दे रहा है और डीएनए को भी फ्रैगमेंट कर दे रहा है, तब सबका दिमाग एकदम चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। देन दे फाइंड दैट कि देयर इज ए प्रोग्राम्ड मैकेनिज्म, सब सिस्टम बना हुआ था। व्हाट इज द सिस्टम? फर्स्ट वन इज द रेगुलेटर, सेकेंड वन इज एडाप्टर, थर्ड वन इज इफेक्टर। रेगुलेटर आएगा तो एडाप्टर भी आएगा, एडाप्टर नहीं आएगा। रेगुलेटर एडाप्टर का दुश्मनी है ना। सेट 9, सेट 4, ठीक है, एंड देन एडाप्टर और इफेक्टर के दोस्ती है। चलेगी क्या तुम? अच्छा, तो सी एलिगेंस में हाँ सेट 9 देन सेट 4, तो सेट 9 ज्यादा होगा तो सेट 4 कम होगा। सेट 4 if high, set 9 will be less. तो सेट 4 is activating set 3 and death, जिसको आपकी एग्जीक्यूशनर कह रहे थे ना, एग्जीक्यूशनर कैश पेजेस बोल रहे थे ना, कैश पेजेस। यस सर, कैश पेज, ये कैश पेजेस सेट 3 कैश पेजेस, जिसको कि यहाँ देखो नाम भी दे रहा है। वर्टेब्रेट में कैश पेजेस नाम देते हैं, लेकिन सी एलिगेंस में द सेम कैश पेजेस इज नेम्ड एज सेड। कैश पेजेस नहीं होते, ठीक है। तो मैंने बोला था तो आफरीन ने सच मान लिया कि मैं तो कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं आज। और वो बेवकूफ बन गई, फटाक से उसने लेफ्ट कर दिया। अरे वेट तो करो, तुम्हें इतना नॉलेज थोड़ी होगा जितना मैं बता रहा हूँ। मैं कितने सिक्वेंसली बता रहा हूँ ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एक एक चीज क्लियर हो जाए, है ना। किसमें क्या रिलेशन है, किताब पढ़ो समझ में आ जाएगा। 10 दिन पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। वेरी टफ। अब लाइव क्लासेस का मजा है, यू कैन डिस्कस, यू कैन आस्क। फिर वीडियो होता है किस लिए? उसको बार बार रिवाइज करने के लिए। नहीं है तो दिमाग में लाइव क्लासेस बना रहता है। भाई कैश पेजेस, अब सीएसआर ने क्या दिमाग लगाया? सीएसआर के साइंटिस्ट बड़े चालाक होते हैं। दे वांट टू नो कि यू हैव क्लियरिटी इन योर माइंड और नॉट, कि रट के तो नहीं आए वो ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उसको रट लेते हैं, सोचते हैं कौन तैयारी करेगा, क्वेश्चन आंसर रट लो, सेम चीजें तो आती नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि इक्विवेलेंट टू सेट 3, देखना ध्यान से, इक्विवेलेंट टू सेट 3 and set 4 in vertebrate, what system exists? उल्टा पूछ दिया, what system is there? तो against set 3, this is BCl2, set 3 EPAF1, set 4 EPAF and set 3 caspase 9. This is A, B, C and D. अब ऑप्शन में था only A and B correct. Option 2, B and C correct. Option 3, B and D correct. And fourth option, all correct. कौन सा करेक्ट है? सेट 3 B and D करेक्ट। B and D, क्योंकि तुमने ये देख लिया है। सेट 4 EPAF1, सेट 4 EPAF1 B में है, और सेट 3 कैस्प 9। सेट 3 कहाँ गया? कैस्प 9। तो B and D इसलिए करेक्ट है। अब अगर ये चीज नहीं होती तो आप बिल्कुल ही बता नहीं पाते कि एक्चुअल में ये क्या पूछना चाह रहा है। सेट से तो पता ही नहीं चल रहा है, राइट? सेट से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हमने तो कैस्पेस के सिस्टम को पढ़ा है, बट यहाँ पे आप देखोगे सी एलिगेंस में व्हाट इज एब्सेंट?
executioner caspase is absent. सीधे Yes, sir. इफेक्टर, सीधे इफेक्टर ही एक्सक्यूशनर है और यही इनिशिएटर भी है. Initiator ठीक and है. हाँ, executor. तो Z3 both, Z3 acting as a both, Z3 acting as a both, जबकि यहाँ पे अलग अलग है. 9 is the initiator, caspase 3 is the executioner. अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया तुम्हें, है ना. दिमाग का क्लाउड जो है हट गया. तो ये तो वही रिपीटेशन है. फास्ट लाइगेंड्स, डेथ डोमेन और TNF अल्फा, TNF R, है ना, डेथ डोमेन. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन. एडाप्टर प्रोटीन आ गया तो अब क्या होगा, इनिशिएटर कैस्पेजेस. अब याद हो गया ना आपको, किसी को भी पढ़ा सकते हो. इनिशिएटर कैस्पेजेस एंड देन एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस. Executioner. ठीक है. तो इनिशिएटर होगा तो पहले प्रो फिर एक्टिव. Pro. अब एक एक्टिव हो गया तो हाँ, प्रो से एक्टिव, एंड एक एक्टिव हुआ तो उसने दूसरे को भी एक्टिव कर दिया. ठीक है. हाँ. तो इनिशिएटर में दो फॉर्म हो गया, I to A. एक्सक्यूशनल में A will act over I and making them A. ठीक, ठीक है. इतना क्लियर हुआ. अब जाके डेथ हुई है. Clear. हाँ, चलो ये सारा खत्म हो गया. रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस. अब ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस. So regulatory protein BCL2 equivalent to Z9. BCL2 equivalent to Z9. 9. और BCL2 BCL तो invertebrates में हाँ, होता है. हाँ. Apoptosis dependent binding on BCL2 with pro-apoptotic and anti-apoptotic proteins. Situated in outer mitochondrial membrane. APAF1 is equivalent to Z4. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि BCL2 is equivalent to Z9. APAF1 equivalent to Z4. इसको कैसे याद करोगे? Z4. ये स्ट्रक्चरली याद करना थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है. And then T-P53 caspases, BAX, adenovirus, papilloma, hepatitis B. है ना? They can activate apoptosis. तो ये कैसे हो रहा है? Cytochrome C is released, then pro-caspase 9 cleavage, and then pro-executioner. Initiator फिर executioner, फिर 367 वही cleavage of cellular protein, nuclease activation, and then death. Death. तो ये क्लियर हो गया आपको. ठीक है ना. 367 executioner caspase is activated cascade of photoelectric activity that leads to chromatin condensation, DNA fragmentation, protein cleavage, membrane. तो ये C elegans में देख लो, ये सिस्टम है. BCL2 कह लो या EGL1 है वहां पे, Z9, Z9 Z4 एंड देन Z3. मैमल में अच्छा BCL2 नाम दिया हुआ है. एक्टिवेटेड BS3 ओनली प्रोटीन, देन BCL2 विल इनहिबिट बैक्स बैक. हमको नया टर्म आ गया ना, अचानक से बता देते तुम घबरा जाते. व्हाट इज बैक्स बैक? ये BCL2 हाई होगा तो बैक्स बैक लो होगा. ये डायमेरिक फॉर्म जो होता है बैक्स बैक का, दैट इज गोइंग टू इनहिबिट APAF1. अगर ये नहीं होगा देन APAF विल बी एक्टिवेटेड एंड कैस्पेजेस विल बी एक्टिवेटेड. रिलीज ऑफ मार्कोन. ठीक है. तो व्हाट इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन? BCL2. नाम याद रखो, BCL2. एंटी एपोप्टोटिक BCL2. तो CSR में क्वेश्चन पूछा था कि which protein is both pro-apoptotic, both pro
apoptotic and anti-apoptotic। इसका नाम क्या है? BCL2। ठीक, BCL2। तो ये भी बोल सकता है कि व्हाट आर द अदर एंटी एपोप्टोटिक। तो अदर एंटी BCLXL, BCLW वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रो एपोप्टोटिक में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BH3 ओनली एक्टिवेटर्स, BID, BIM और अदर मेम्ब्रेन इंक्लूड BAD। नाम ही सुन के अच्छा नहीं लग रहा है BAD, नोक्सा, पूमा। ये क्या है? प्रो एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक। तो बिड का बनता है बैक्स के साथ, या बैक्स के साथ, या बैड बैक के साथ, ये कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये BH3 ओनली एक्टिवेटेड डोमेन है और मल्टी डोमेन इफेक्टर। Sometimes withdrawal of positive signals also leads to activation of apoptosis. For example, IL-2, growth factor of neurons. ठीक है। And death activator are TNF alpha, TNF beta, FASL। कौन कौन से? TNF alpha, beta, FASL। और ये है प्रोसेस जीन एंटीफायर इंक्लूडिंग BCL2, FAS, APO1, P53, SET3 consequences। अब ये समझ में आ गया। अब सपोज ये ऐसे एग्जांपल से भी पूछ सकता है कि देयर इज 1090 सेल्स और ये 131 सेल्स हो गए तो दिस इज बिकॉज ऑफ इज कंट्रोल। ये SED9 जब चल रहा है तो ये किस में चल रहा है? C एलिगेंस में। CDA CE पहला टर्म ले लिया एलिगेंस का, पहला टर्म ले लिया C, तो इसी को कहते हैं CE। CD9, CD4, CD3 यानी C एलिगेंस का ये सर। ठीक है। SED1 2 5 6 7 10 ये एनगल्फमेंट का है। 9 फिर 3 6 7। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सारी चीजें। हाँ, लाइगेंड रिसेप्टर का मैचिंग पूछा हुआ था। तो फास एल फास, TNF का TNF-R, ट्रेल का रिसेप्टर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, DR4 ट्रेल, DR4। तो आज यहीं तक, कल हम लोग कुछ और मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। तो वी हैव स्टडीड टोटल 102 स्लाइड्स। कैन यू इमेजिन? चलो, हाँ, इंटरेस्टिंग हो तो फिर पता नहीं लगता। गुड नाइट, थैंक यू।